Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، اس سے پہلے 3 سورتیں گزر چکے ہیں، سورۃ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ یہ تینوں سورتیں مدنی تھے۔ آج سورۃ قاف یہ مکی ہے۔ میرے محترم دوستوں، صحابہ اکرام نے قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کی ہے۔ ان سورت مبارکہ سے 7ویں منزل شروع ہو رہے ہیں۔ سورۃ القاف سے 7ویں منزل شروع ہو رہے ہیں، جو قرآن کی آخر تک یعنی سورۃ الناس تک پہنچے گی۔ پہلے منزل 3 لمبی سورتیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء ہے۔ اس کی بعد دوسری منزل میں 5 سورتیں، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ آتی ہے۔ پھر تیسری منزل میں سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجرات، سورۃ النحل، سورۃ الحجر، سورۃ النحل۔ یہ چوتھی منزل میں 9 سورتیں جن کی نام سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ القحف، سورۃ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ المؤمنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان۔ اس کے بعد 5ویں منزل میں 11 سورتیں جن کی نام سورۃ الشعراء ہے، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم، سورۃ لقمان اور سورہ الف لام میم السجدہ، سورۃ الاحزاب، سورۃ السبا، سورۃ الفاتر اور سورہ یاسین کی آخری 6 منزل میں۔ اور میرے دوستوں، آخری 6 منزل میں 13 سورتیں، سورۃ الصافات، یہ 5واں منزل گزرے، سورۃ الصافات اور سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن، سورۃ حامیم السجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ، سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ یہ 6ٹی منزل کی آخری سورۃ الحجرات تھے۔ اور آخری 7ویں منزل کی جو ہے، جو سب سے پہلے ابتدائی سورت ہے، سورۃ القاف ہے، یہ مکی ہے۔ اب میرے دوستوں، یہ جو منزلیں صحابۃ الاجمعین نے ترتیب دی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسی انداز سے قرآن مجید کا ختم کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ ہر روز 1 منزل کا تلاوت کرنا، 7 دن میں قرآن مجید کا ختم کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو میرے دوستوں اکثر اجتماع اور نمازوں میں، خاص طور پر جمعہ اور عیدین کے موقع پر اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات جمعہ کے دن فجر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پڑوسن صحابی تھی جن کے نام ام حشام بنت حارثہ، وہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
रहती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहते थे कि तनूरुना वाहिदुन, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पकाने और मेरे रोटी पकाने के चूल्हा यानी तनूर एक ही था, इतनी करीब थे कि मैं अक्सर सुनती थी कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत जुमातुल मुबारक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत फरमाया करते थे, बल्कि मिंबर में बैठ कर अल्लाह के रसूल इस सूरत की बयान भी फरमाया करते थे। और मैंने अल्लाह के रसूल से सुनकर इस सूरत की याद भी की। मेरे दोस्तों, आप आए काफ, ये हुरूफ मुक़त्ताअत है। अब हुरूफ मुक़त्ताअत जो हुरूफ है मेरे दोस्तों, इसको समझने के लिए एक सबसे पहले मेरे दोस्तों हम इस अंदाज से इसको समझते हैं कि भाई इसकी मानी और मुराद अल्लाह ही को मालूम है ना, लेकिन कुछ उलमा मुफस्सिरीन किराम ने अपनी अपनी अंदाज से इसकी तशरीह की है, यानी जिसको तकरीब फहम कहते हैं, यानी आसानी के साथ ना, बिल्कुल आसानी के साथ इसकी मतलब को समझ लें। अब समझ लें कि हुरूफ क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद के क़ाफ का इशारा अल्लाह की तरफ है, यानी अल्लाह की सिफत कादिर की तरफ है। तो अब मेरे दोस्तों आप ये बातें समझ लें, जब दुनिया दायम व कायम है, इसमें हसद बुग़्ज़ इस किस्म की चीज़ें भी रहती हैं, जालिम और मजलूम भी दुनिया के अंदर बाकी है। तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम कादिर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जालिम और मजलूम यानी मजलूम को जालिम से इनका हक दिलाएं, इसकी कादिर इसकी तरफ इशारा है। अब मेरे दोस्तों दूसरी तरफ इशारा फरमाते हैं कि सूरतुल क़ाफ के मेरे दोस्तों रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीगर सिफत नाम की तरफ इशारा है। वो क्या है मेरे दोस्तों? कुद्दूस है, कुद्दूसुन, कुद्दूसुन, खालिकुन, कहारुन, कदीम, कदीरुन, काबिजुन, मुकीतुन, हक्कुन। और फिर उसकी बात फरमाया कि कवियुन, मुख्तदिरुन, मुंतकिमुन, मुक़सितुन, रकीबुन, रज़्ज़ाकुन वगैरह, ये इस क़ाफ से मुराद लेते हैं बाज़ मुफस्सिरीन किराम। अब मेरे दोस्तों इस सूरत के अंदर तकरीबन 45 क़ाफ इस सूरत में पूरे सूरत में ज़िक्र फरमाया अल्लाह रब्बुल आलम, 45 मकाम पे ये क़ाफ की ज़िक्र फरमाया। बाज़ फरमाते हैं कि क़ाफ से मतलब काफ़े से ये मुखफ़्फ़ है, यानी ए मोहम्मद, क़ाफ का मतलब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक, आप और आपके साथ तौबा करने वाले यानी ईमान वाले सिरात मुस्तकीम पर कायम हैं। इस क़ाफ का मतलब ये है, जैसा कि आपको ये हुक्म दिया गया है कि हो सकता है क़ाफ से मुराद सिरात मुस्तकीम और क़यामत दोनों हों, दोनों ही इसके मतलब है, क्योंकि सिरात मुस्तकीम पर चलने और क़यामत का जिक्र भी इस सूरत में मौजूद है, क़यामत की सूरत भी इस सूरत के अंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों इसी तरीके से क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, अब क़ाफ का मतलब मेरे दोस्तों बाज़ ने कहा कुरान के नामों में से भी एक नाम है, जिसे हम कुरान मजीद, फुरक़ानुल अज़ीम, कुरान शरीफ, इसी तरीक़े से क़ाफ का कुरान के नामों में से कोई एक नाम है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकारों में से चौथी सदी की एक बड़े मुत्तक़ी और मुफ़क्किर और मुफस्सिर कुरान और फ़क़ीह जो है हज़रत इमाम अबुल लैस
फ़क़ी फरमाती हैं कि काफ से मुराद है अल्लाहु क़ाइमुम बिल क़िस्त, यानी अल्लाह ताला इंसाफ पर कायम है। बाज़ मुफ़स्सिरीन किराम ने इस काफ वल क़ुरआनिल मजीद, इस काफ का मुराद ली है कुदरत इलाही और कुर्ब इलाही ना, जैसे आगे आ रहा है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शय रग से भी ज़्यादा करीब है। इस काफ का मतलब ये है। बात से मनकूल है, काफ से जबल काफ मुराद है, यानी एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम काफ है और ये जबल काफ उस पहाड़ के नाम है। और शेख इब्न अरबी बहुत बड़े बुजुर्गों में से, बड़ी मुफस्सिर कुरान में से, और फरमाती हैं कि इस काफ से मतलब है कल्ब मोहम्मद की तरफ इशारा है, यानी जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब मुबारक को तमाम तर क़ुलूब से क्या है, खुसूसियत हासिल है, जो किसी दूसरे क़ुलूब को, दूसरे क़ल्ब को हासिल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़रीन। इस कुरान को जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आपकी क़ुल्ब पर नाजिल किया ताकि आप डराने वालों में से हो। इस काफ का मतलब ये है। काफ से कल्ब मोहम्मद की तरफ इसी तरह भी है जैसे स्वाद में, स्वाद का मुराद सूरत मोहम्मद है, जो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने तमाम बनी नो इंसान में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हसीन और ऐसे जमील और खूबसूरत बनाया। मेरे दोस्तों फरमाते हैं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज्सा में मेरे दोस्तों मुबारक भी क्या है, मोतदल है। अल्लाह के रसूल की जैसे हसीन और ख़ूबसूरत इस कायनात के अंदर नहीं मिलती हैं। जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए मेरे दोस्तों फरमाती हैं माँ आमना कितनी हसीन और ख़ूबसूरत बच्चे इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाया, पैदा हुआ। जब मेरे दोस्तों अबू लहब है वो देखते हैं, वो भी कहते हैं कितने हसीन और ख़ूबसूरत है। अबू तालिब आते हैं, देखते हैं कितना हसीन और ख़ूबसूरत है। अब्दुल मुत्तालिब आते हैं और कहते हैं कितनी हसीन और ख़ूबसूरत बच्चा है। अल्लाहु अकबर, जैसे 14वीं तारीख के चाँद इनकी घर के अंदर तुलू हुए हैं। मेरे दोस्तों कहा कि अल्लाह के रसूल के सामने 14वीं तारीख की चाँद भी मान पड़ जाती है अल्लाह के रसूल की शक्ल के सामने, उनकी सूरत के सामने। मेरे दोस्तों फिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही पैदा हुआ और बिल्कुल उठ कर इस अंदाज से बैठे हैं, अपने सीधे शहादत अंगुली को आसमान की तरफ इशारा करते हुए अल्लाहु अकबर, मेरे दोस्तों सीधा सिजदा में जाबे पड़े और साथ में नमाज भी लेकर आए हैं। और इतनी देर कि एक आम बंदा सिजदा में इतनी देर नहीं करते हैं, इससे भी ज़्यादा देर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा के अंदर पड़े। उसकी बाद फिर उठ कर बैठ के चारों तरफ देखते हैं। मेरे दोस्तों इसकी तारीफ़ इंशाल्लाह बाद में जब इंशाल्लाह सीरत-उन-नबी आएंगे, हमारा सीरत-उन-नबी का बयान अभी यूट्यूब में चल भी रहा है मेरे दोस्तों, अब वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब आइए मेरे दोस्तों के फरमाते हैं कि अजीम फिलसफी मंतकी और तबीब शेख इब्न सीना लिखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक आदलुल अजसाम यानी तमाम अजसाम से ज्यादा मोतदल था। अल्लाहु अकबर, क्या हसीन और खूबसूरत। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आप भी जाके देख लो, और जिब्राइल अमीन तशरीफ लाती हैं, अल्लाह के रसूल की चेहरा मुबारक को देखते हैं कि अल्लाह क्या हसीन और खूबसूरत तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, और कितनी खूबसूरत तूने पैदा की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, या अल्लाह कितनी हसीन और खूबसूरत है। अल्लाह ने फरमाया जिस जांचा में मैंने मोहम्मद को पैदा किया वो ढांचा मैंने तोड़ दिया है, और बल्कि मोहम्मद जैसे ऐसे किसी को मैंने इतनी हसीन और खूबसूरत पैदा ही नहीं किया। फरमाते हैं मेरे दोस्तों तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म भी आदलुल अजसाम है। फरमाया इससे मुराद कल्ब मोहम्मद है। इस ख़ाफ से
बाज़ उलमा ने कहा इससे मुराद है क़ज़ल्लाह, यानी अल्लाह ताला की फैसला की तरफ भी हो सकता है। बाज़ ने कहा ये स्वाद से मुराद है सदाक़ल्लाह, यानी अल्लाह की सदाकत की तरफ इशारा है। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से मुफस्सिर किराम में से इमाम राजी, मेरे दोस्तों, बड़ी हजरत सुल्तान मोहम्मद गौरी की ज़माना की एक अजीम जो है ना मुसन्निफ और मुफस्सिर कुरान इमाम अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपने सिर्फ काफ का मतलब एक दूसरे तरीका से भी समझाया। वो फरमाते हैं मेरे दोस्तों कि इबादत 3 तरीक़ों से होती हैं। काफ आपको समझ में नहीं आया ना, काफ की मतलब कि इतने सारे लोगों ने इतने सारे तफसील की है कि कल्ब मोहम्मद भी हो सकता है, और इससे काफ के मतलब है क़ज़ल्ला भी हो सकता है, इससे मतलब कुद्दूस, क़दीर और क़हार, और अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की ये कादिर, ये सारे मतलब हो सकते हैं। फिर फरमाया, फिर काफ का मुराद समझाने के लिए अल्लामा राजी ना, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अंदाज से फरमा रहा है कि इबादत 3 तरीक़ों से होता है। इबादत 3 तरीक़ों से होती है। एक कल्ब से होती है, दूसरे ज़बान से होती है, तीसरे अजसाम जवारे, यानी जिस्मी जवारे, अजसाम जवारे से, यानी हमारे जिस्म की जो आज़ा है इससे होती है। एक कल्ब से इबादत, दूसरी ज़बान की इबादत, तीसरी अजसाम की इबादत है। इसको समझा रहे हैं इस काफ को। देखें तो फरमाया कल्ब की इबादत के इंसान की अकीदा सही हो। और मिसाल के तौर पर हम मेरे दोस्तों नमाज पढ़ते हैं, बोले नफिल किसके लिए पढ़ते हैं भाई? नफिल आपकी समझ में लोगों से पूछें आप, ये कहेंगे कि नफिल अल्लाह अपने लिए, वे सुन्नत अल्लाह के रसूल के लिए। मेरे दोस्तों फिर कहेंगे भाई फ़र्ज, बोले अल्लाह के लिए नहीं, ये अकीदा नहीं है। हमारे नफिल हो, हमारे सुन्नत हो, हमारे फ़र्ज हो, वाजिब हो, किसके लिए भाई? अल्लाह के लिए हम पढ़ते हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती हमारे नमाज, व नुसुकी हमारे नजर नियाज, हमारे कुर्बानियाँ न, व महयाया हमारे हयात और मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो हमारे नमाजें नफिल भी अल्लाह के लिए है, सुन्नत भी अल्लाह के लिए है, फर्ज भी अल्लाह के लिए है। ये अकीदा सही अकीदा जिसको कहते हैं। अब मेरे दोस्तों अल्लाह पाक है, वो अल्लाह अकीला है, वो अल्लाह तने तना है। मेरे दोस्तों इसकी दिल के अंदर यकीन करना कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, जो भी कुछ होता है एक अल्लाह से होने का यकीन। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों अकली और नकली दलाइल से भी अल्लाह वादहू ला शरीक लह से, अल्लाह वादहू ला शरीक लह की जो है ना मेरे दोस्तों अकीदा को समझा जा सकता है, जिससे अल्लाह की वहदानियत और वक़ूए क़यामत की अकली और नकली दलाइल से समझा सकते हैं। ये कल्बी इबादत समझ लें। अब आइए मेरे दोस्तों, अगर हमने अपने कल्ब की ज़रिए से ना समझने की कोशिश करते हैं तो फुलसिरात हमारे समझ में आएंगे कि एक बारीक बाल से भी बारीक होगा, छुरी से भी तेज, उसी के ऊपर से हमें गुजरना है। फिर कल क़यामत को मेरे दोस्तों मीज़ान की बारे में फरमाया कि भाई हमारे आमाल का जो वज़न होगा, ये भी हमें समझ में आती है। ये अमल की वज़न कैसे होंगे? अब मेरे दोस्तों ये एक नासमझ वाली जो बात है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। ये कल्बी इबादत है, इसके ऊपर यकीन करना कि फुलसिरात बरहक है और वज़न कल क़यामत की आमाल की वज़न भी बरहक है। ये हमारे अकीदा है, इसके ऊपर यकीन करना। ये क्या है? इबादत है। ये क्या है? इबादत है। तो काफ का मतलब ये है। अब आइए ज़बानी इबादत। अब ज़बान से हम हम्दो सना अल्लाह की पढ़ते हैं, तस्बीह तहलील करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की जिक्र करते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों।
अल्लाहु 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 का अल्लाहु हादिरी अल्लाहु नादिरी अल्लाहु माई। हम अल्लाह की जिक्र करते हैं, ये ज़बानी इबादत है, ये ज़बानी इबादत है। फिर हम नमाज में सूरतें पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद की तलावत करते हैं, हम रुकू सजदा के अंदर मेरे दोस्तों सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं। ये क्या है मेरे दोस्तों? इबादतें ज़बानी हैं। आप इबादतें, ये दो किस्म किया। अब इबादत और एक इबादत आज़ाए जवारे यानी जिस्मानी इबादत कैसे की जाती है। अब हम रुकू करते हैं, ये जिस्मानी इबादत है। हम रुकू करते हैं, सिजदा करते हैं, जिस्मानी इबादत है। हम मेरे दोस्तों कौमा करते हैं, ये जिस्मानी इबादत है। कूदा है, ये जिस्मानी इबादत है। क़याम है, खड़े होकर सीधा होकर क़याम किया, यह जिस्मानी इबादत है। जैसे नमाज की फ़राइज़ में से मेरे दोस्तों कुछ इस किस्म की है, जैसे 13 फ़राइज़ में से 6 अरकान है, 7 अहकाम है। 6 अरकान है, 7 अहकाम है। अब मेरे दोस्तों इसमें से कुछ इबादतें ज़बानी है और कुछ इबादतें जिस्मानी है। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों ये इबादत के बारे में ये समझाती हैं उलमा मुफस्सिरीन किराम हजरत बिल आखिर मेरे दोस्तों ये मुताशाबिहात और हुरूफ मुक़त्तआत वगैरह की इस किस्म के अल्फाज को समझाने के लिए हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, कहा कि भाई मैंने सबसे पहले जो बताया कि अल्लाहु आलमु, इसकी मुराद भी मुराद ही बिदालिक, इसकी मुराद सिर्फ अल्लाह को मालूम है, इसकी मतलब सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लेकिन फिर भी इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये एक ऐसी कबाहतों की तरफ इशारा है जो पत्थर की तरह सख्त हो चुकी हो, क्योंकि काब में कुव्वत और शिद्दत वाला माने पाया जाता है। इन कबाहतों का मुकाबिला कुव्वत कुद्सिया के जरिए से मुमकिन है। जैसे इस मकसद के लिए मिंबर में बैठकर इमाम अपनी मुसल्लियों को, अपना मुक्तादियों को बयान फरमाते हैं, वाज करते हैं और नसीहत करते हैं, तकरीर करते हैं मेरे दोस्तों, और इसकी कुरान मजीद का दर्स देते हैं। और यह दर्स और तदरीस और वाज और नसीहत जो की जाती है, ये समझ लें ये बारीक एक पत्थर और ये एक सख्त जिसको कुव्वत और शिद्दत वाला माने में ली जाती है। यह हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, ताकि लोगों को बताते रहें, बयान करते रहें, वाज करते रहें, नसीहत करते रहें, लोगों को ये बातें समझ में आ जाए कि अल्लाह जो वादाहुला शरीक ला है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो शख्स जिसने अल्लाह की अताअत की हो, वो शख्स जिसने अल्लाह के रसूल की अताअत की है, मेरे दोस्तों वो कामयाब है। और जिसने अल्लाह के रसूल के अताअत को छोड़ दी और अल्लाह के हुक्म अहकाम को छोड़ दी, वो नाकामी नाकाम है। इस बात को समझाती उलमा। तो इसका मतलब यही है काफ का। अब आइए मेरे दोस्तों, वल कुरआनिल मजीद, बड़ी बुजुर्गी और अजमत वाले कुरान की कसम है, बड़े बुजुर्गी और अजमत वाली कुरान की कसम है। अल्लाह ने फरमाया वल कुरआनिल मजीद। मेरे दोस्तों अब ये जो जवाब है ये जवाब कसम है। जैसे ये हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाम की इब्तदाई दौर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबतुल अजमईन की दौर में किताब की शक्ल में सिर्फ एक वाहिद ये कुरान मजीद था और बाकी कोई किताबी शक्ल में नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वल कुरआनिल मजीद फरमा कर ये अल्लाह जवाब दे रहा है कि कसम इस बुजुर्गी वाला, इस बुजुर्गी और अजमत वाले कुरान की कसम खाकर अल्लाह आगे जवाब फरमा रहा है। मेरे दोस्तों अब आइए मेरे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हम्माम इब्ने मंबा रहमतुल्लाह अलैह के सहीफा की पहले सदी की निस्बत मिलता है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनका दौर खिलाफत सिर्फ 2 से 2.5 साल था, मेरे दोस्तों फरमाया ये कुरान तो मौजूद है, ये किताबी शक्ल में कुरान मौजूद है, लेकिन हदीस किताबी शक्ल में मौजूद नहीं है। तो अगर उलमा दुनिया से ख़त्म हो जाए, अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रवायत फरमाते हैं कि भाई इन्नी खिफ्तु कि दुरूस अल इल्म व ज़हब अल उलमा, मुझे इल्म और उलमा की चले जाने का खतरा है। अगर सही आलिम इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो इल्म की हिफाजत कैसे होगा, कौन करेगा? ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सोच कर अहादीस को जमा किया। चुनांचे यहीं से तदबीन हदीस का शुरू हुआ। तदबीन हदीस का शुरू हुआ कब? 59 हिजरी को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में 2 से 2.5 साल उनकी जो है ना दौरे खिलाफत थे। दौरे खिलाफत में ये शुरू हुआ मेरे दोस्तों। हदीस की छान बान के बाद इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की ज़माना तक अहादीस का ज़ख़ीरा होते रहे। फिर रावियों की छान बान के बाद मेरे दोस्तों ये तफ़हीम बुनियादी मेरे दोस्तों ज़रिए से अहादीस मुबारका में मेरे दोस्तों ये एक किताबी शक्ल में मेरे दोस्तों उनकी कोशिशों से और ये जो है ना मेरे दोस्तों ये तदवीन शुरू हो गई है। मेरे दोस्तों ये किताब में आई जो सियासित्ता बोलते हैं भाई, सियासित्ता बुखारी मुस्लिम ना अबू दाऊद तिरमिजी और निसाई, ये सियासित्ता में शामिल होगी मेरे दोस्तों। ये हदीस की किताब है। अब आइए मेरे दोस्तों, अल्लाह के फरमा रहे कि क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबु अजाहुम मुदिरुम मिनहुम, वो कुरान पर तो ईमान नहीं लाए बल्कि इस पर ताज्जुब का इजहार किया। ये काफिर मुश्रिकीन लोग इस पर ताज्जुब का इजहार किया कि इनके पास इन्हीं में से एक डराने वाले आ गया और उनकी खानदान में से, इन्हीं लोगों में से, बनी इंसान में से, आदम की औलाद में से ये कैसे कर हो सकता है कि हम में से ऐसे नबी तशरीफ लाएं, ऐसे नबी तशरीफ लाएं। मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया दूसरी जगह में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनीन को पर बहुत बड़ी एहसान की इस एतबार से कि तुम्हारे ज़ात में से, तुम्हारे जिन्स में से, तुम्हारे बशर में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे पास ऐसे एक नबी को भेज कर क्या किया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर एहसान की है ताकि तुमको प्रैक्टिकली कुरान पढ़कर बता दे, तुमको हर किस्म की आमाल को प्रैक्टिकली तुम्हें बता सके। आज अगर इंसान ना होते मेरे दोस्तों फरिश्ता और जिन्नात में से तो बता सकते नहीं। तो फरमाया मेरे दोस्तों ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि इंसानी सोसाइटी में नबूवत और रिसालत का सिलसिला शुरू से बनी आदम में से आ रहा है और बनिए नो इंसान में से अल्लाह ने पैदा की है। फरमाया फ़क़ाल अल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, बस ये काफिर कहने लगा बारियाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत पर काफिर कहने लगा कि ये बड़ी अजीब चीज है कि हम में से एक आदमी नबी बनकर आ जाए। और उन्होंने ये अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु, क्या हम अपने में से एक आदमी का इत्तबा शुरू कर दें? हम अपने में से एक आदमी का इत्तबा शुरू कर दें? फरमाया तो ये तो एक बेवकूफी की बात है। नाउजुबिल्लाह, वो लोग अल्लाह की इस हिकमत को नहीं समझते थे। जो इंसानी सोसाइटी में काम करने के लिए मेरे दोस्तों जो काम करती है, बल्कि इसे अपने आप पर क्यास करके कहते कि ये तो हम ही में से एक आदमी है, भला इसका इत्तबा हम कैसे कर सकते हैं। अल्लाह आगे फरमा रहा है मेरे दोस्तों, जो ये लोग क़यामत से भी इनकार करते हैं, एक तो अल्लाह की नबी रिसालत के ऊपर मुनकर, दो से कुरान मजीद के ऊपर मुनकर, तीसरी नंबर क़यामत के ऊपर। फिर इनकी मरने के बाद जो बौसत होंगे, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, मैंने पहले बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बड़ी बड़ी इज्तिमा में ये सूरत तलावत फरमाते थे, ये सूरतें तलावत फरमाते थे, यानी जुमा में, ईदाइन में। क्यों कि इस सूरत के अंदर पैदाइश इंसान की
और अल्लाह पाक परवरदिगार आलम जो बौसत फरमाएंगे मरने के बाद, और क़यामत के बारे में, हशर नशर के बारे में, जज़ाए अमल के बारे में मेरे दोस्तों अल्लाह ने सूरत के अंदर जिक्र फरमाया। अब फरमाया इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी के साथ जो है ना मिट्टी हो जाएंगे तो फिर कैसे हम जिंदा होंगे? क्या हमें तो ये भी मालूम है कि इंसान की कौन सी आज़ा को, इंसान की कौन सी आज़ा का दालिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम, कि कौन सी आज़ा मिट्टी खा जाते हैं ना? हमें यह भी मालूम है कि इंसान की कौन सी आज़ा मिट्टी खा जाती हैं और मिट्टी के अंदर बुसीदा हो जाते हैं, हमें यह भी मालूम है। आप मेरे दोस्तों, अब यहां पर है इंसान की तमाम तर आज़ा मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन एक बात है, शुहदा किराम की जसद मुबारक कभी भी मिट्टी में नहीं मिलती है मेरे दोस्तों। दूसरी नंबर जो अंबिया किराम हैं, इनकी भी जसद मुबारक मेरे दोस्तों मिट्टी में नहीं मिलती हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान की पूरे जिस्म, पूरे सब कुछ गल सड़ जाती है और मिट्टी में मिलकर बुसीदा हो जाती हैं, लेकिन इंसान की साइंस की कौल भी, और आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुमची की जो हड्डी है उसके अंदर एक बारीक सी नक्ते हैं मेरे दोस्तों, कि उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक किस्म की मादा रखी है, जिसके अंदर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फिर उसी हड्डी की, दुमची की हड्डी से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को दोबारा मबूस फरमाएंगे। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। और आज साइंसदान इसके ऊपर तहकीक कर रहे होती हैं कि दुमची की हड्डी कौन सी है। कूल्हे के ऊपर से एक हड्डी है मेरे दोस्तों आपकी, देखना उसके अंदर एक मादा है जिससे अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इंसानों को जिंदा फरमाएंगे, दोबारा मबूस फरमाएंगे। मेरे दोस्तों अब आइए कि वो जो हड्डी है मेरे दोस्तों के वो गलते सड़ते नहीं है, बल्कि उस हड्डी की, उस मादे से पूरा इंसान की तमाम तर जिस्म की आज़ा को साइंसदान जो है उसको निकाल कर बता सकता है कि इसके अंदर क्या है, कितनी चीज़ें, कितनी उंगलियां थी, कितनी आंखें थे, कितनी नाकें थे, और सारे कुछ जो है ना वो बता दे सकता है इंसान साइंसदान उसको उठाकर। तो मेरे दोस्तों आगे देखिए, फरमाती हैं क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम, आगे में फरमा रहे इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कि इंसान की तमाम तर चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन रूह अल्लाह उठा लेते हैं और उसकी आमाल ज़ाया नहीं होती है। एक रूह है, दूसरी आमाल है, ये ज़ाया नहीं होती है। मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया, आखिरी बात है मेरे दोस्तों, वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। मेरे दोस्तों कल क़यामत को उसकी आमाल को उसकी गर्दान में किताब की शक्ल में लटका दिए जाएंगे, वो खुद अपने आमाल को देख सकेंगे। मेरे दोस्तों वो देखते रह जाएंगे। इक़रा किताबिक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अपनी किताब पढ़ ले, आज तू खुद ही अपना मुहासिब काफ़ी, मुहासिब तेरे लिए काफ़ी है, तो खुद ही अपने किताब की मुहासिब है, देख ले। फरमाया मेरे दोस्तों अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे दोस्तों इंसान जो भी कुछ इस दुनिया के अंदर करते हैं उसकी मुंह में मोहर लगा दिए जाएंगे, उसकी हाथ बोल पड़ेंगे, उसकी आंखें बोल पड़ेंगे, उसकी कान बोल पड़ेंगे, उसकी जिस्म की तमाम तर आज़ा बोलना शुरू कर देंगे, अल्लाह के सामने गवाही पेश करेंगे, बल्कि उसकी जिस्म की एक एक बाल अल्लाह के सामने गवाही पेश करते रहेंगे। मेरे दोस्तों कोई चीज़ बाकी रहेगा नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया आज खुद अपने फैसला कर ले और ये देख ले तूने जो भी कुछ किया। वह इंदना किताबुन हफीज, फरमाया कि हमारे पास तो हिफाजत करने वाली एक किताब भी है। वो क्या है? वो लोहे महफूज है। बल कद्दबू बिल हक़्क़ि, बल्कि फिर भी ये हक को जुटलाते हैं जब उन लोगों के पास सच्ची किताब आने के बावजूद भी फहुम फी अमरी मरीज, फिर वो उलझी हुई एक परेशानियों में मुब्तला है। मेरे दोस्तों क्यों तुम उलझी हुई इस परेशानी में मुब्तला हो? फिर किताब में तो अल्लाह ने खोल खोल कर बता दी है किस परेशानी में हो, किस टेंशन में हो तुम। सारे टेंशन को खत्म कर दो, टेंशन की बात ही अब
نہ کرو، آپ آ جاؤ اللہ کی کتاب کو دیکھو، پڑھنے والوں سے سن کر اس کو سمجھ لو، بتانے والوں سے سن کر اس کو صحیح طریقے سے اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ چلنے کیا ہو تو اللہ کی اس کتاب سے دیکھ لو، اور میرے دوستوں کچھ کرنے کا ہو تو اللہ کی اس کتاب کے مطابق کر لو، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم ناکام رہو گے۔ اللہ ہم سب کو اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، آج کاف کی جو مراد میں نے بتایا، اس کی پورا معنی آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں، 5 ساڑھے 5 بجے کے درمیان آپ لوگوں کی یوٹیوب میں یہ بیان آ رہے ہوں گے۔